Enter the invite code to unlock your PPT. What is the invite code? What is the invite code? Type in chat box रे बाबा. What is the invite code? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. Type in chat box. What is the invite code? Let me see. Let me see how many of you are able to tell me. Yes, yes. Vishal, very good, very good, very good, very good. Excellent है रे बाबा. Yes, yes, yes. What a beauty, what a beauty, what a beauty. Negi 10, negi 10, negi 10. ब्यूटिफुल. चलो अटेंडेंस लगा देंगे बेटा. कितने भी नेगी सोल्जर्स लाइव हैं अटेंडेंस लगा देंगे बेटा. दोज हु आर लाइव राइट नाउ मार्क योर अटेंडेंस सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. अटेंडेंस लगा दो बेटा. आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज PYQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ईच एंड एवरीवन. Yes, 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 yes. Shubham is present, Nitish is present, Divyanshu is present, Sam is present, Sahabaz is present, Karan is present, Chandan is present, Virat is present, Himanshu is present, Shrey is present, Vikas is present, Himanshu is present. Chalo, let us start solving the problems, right? Sid is present, Divyanshu is present, Paras is present. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं. लेटेस्ट वाले पहले सॉल्व करेंगे तो 2021 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2020, 2019, 2018, 17, 16, 15 ऐसे जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में. तो बेटा ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ना. यहां पे दो स्टेटमेंट हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है. व्हाट इज द स्टेटमेंट 1? अ थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर is a system that always remains at constant temperature even though the heat is added to or removed from it. Statement number 2, a thermal reservoir that supplies heat energy is called sink and one that absorbs the heat energy is called source. You have to give answer A, Agra. If both statements 1 and statement 2 are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. You have to give answer B, Bombay. If both statements A and statement 1 and statement 2 are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement C. Your option C will be correct if statement 1 is true but statement 2 is false. Your answer will be D if statement 1 is false but statement 2 is true. तो बताओ बेटा आपका क्या आंसर आ रहा है? What is the answer you people are getting? ये तो चंपू क्वेश्चन है, ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. This is correct. This is correct. This statement is correct. Statement 1 is correct. There is no doubt. Statement 1 is correct. A thermal energy reservoir is a system that always remains at constant temperature even though the heat is added to or removed from it. This is correct. Statement number 2, ये उल्टा दिया रे बाबा, ये उल्टा दिया. A thermal energy reservoir that supply heat energy is called source. यहाँ source होना चाहिए तेरे बाबा. And one that absorbs the heat energy is called sink. तो ये तो गलत हो गया. So statement 1 is true, statement 2 is false. So can I say answer is C, Chennai? फटाफट से कंफर्म करो बेटा. Can I say answer is C, Chennai? Yes, yes. चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. ये 2021 का क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Another question which came in engineering services 2021 recently. Last Sunday, let us read the question. Let us read the question. Last Sunday का ही क्वेश्चन है रे बाबा. A refrigerator operates on a reversed Carnot cycle. मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है रिवर्स कार्नोट साइकिल पर. What is the power required to drive the refrigerator between temperatures of 42 डिग्री सेल्सियस and 4 डिग्री सेल्सियस? पूछ रहा है कि कितना पावर रिक्वायर्ड होगा रेफ्रिजरेटर को ड्राइव करने के लिए इफ द टेम्परेचर्स आर 42 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस. इफ हीट एट द रेट ऑफ 2 किलोजूल पर सेकेंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लो टेम्परेचर रीजन. क्या दिया है? इफ द हीट
at the rate of 2 kilojoule per second is extracted from the low temperature region. Q dot L दे दिया है बेटा. अगर आप डेटा देखोगे, मैं फटाफट से आपको डेटा बता देता हूं. डेटा क्या दिया है देखो, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर दिया है बिकॉज रेफ्रिजरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल. So what is the meaning of this? I'm having a reversible रेफ्रिजरेटर. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा. ठीक है, और TH दिया है, TH कितना दिया है रे बाबा? TH इज गिवन 42 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो रे बाबा. 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो, आई थिंक 315 केल्विन है ना. एंड TL is how much? TL is a 4 degree Celsius. So 277 Kelvin, right? Q dot L is given 2 kilojoule per second means 2 kilowatt. फटाफट से बताएंगे रे बाबा. What is the answer? What is the answer of this question? अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. फटाफट से, फटाफटी. Come on everyone, give me the answer in chat box. I want everyone to give the answer in chat box. इसके लिए तो आप लगाओगे नेगी कट. इसके लिए क्या लगेगा? नेगी कट. नेगी 10 कट कर देते हैं. चलो नेगी कट कर देते हैं, नेगी कट अच्छा लग रहा है ना. नेगी कट कर देते हैं. व्हाट इज नेगी कट रे बाबा? व्हाट इज नेगी कट रे बाबा? देखो ध्यान से. Q dot L divided by TL is equal to W dot divided by what? TH minus TL. यहां से क्या आ गया आपका? W dot is TH minus TL. 38 राइट. 38 आएगा ना. फटाफट से कंफर्म कर दो यार. 38 आएगा ना. 38 इंटू वॉट? Q dot L 2 divided by TL 277 है ना. तो W डॉट आ क्या रहा है रे बाबा? 76 divided by 277 kilowatt. I hope each and everyone is clear. On solving, W dot will come 0.274 किलोवाट. तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है रे बाबा? ऑप्शन सी. बन गया ये वाला क्वेश्चन. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. टाइप कर दो बेटा चैट बॉक्स में अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया. आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए. चलो ध्यान से पढ़ना बेटा. लेट अस रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. A cyclic heat engine operates between a source temperature of 800 degrees Celsius and a sink temperature of 30 degrees Celsius. The least rate of heat rejection per kilowatt net work output of the engine will be nearly. Beta TH is given. How much is the value of TH? 800 degrees Celsius. Beta TL is given. How much is the value of TL? 30 degrees Celsius. The least rate of heat rejection per kilowatt net work output of the engine will be. What is the meaning of least rate? आपको तुरंत समझ में आना चाहिए बेटा. ये बहुत ही जबरदस्त कीवर्ड है. लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन कब होगा? When I'm having the रिवर्सिबल हीट इंजन. अब फटाफट से कर लो बेटा, अब फटाफट से कर डालो. देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे. TH इज गिवन. TH इज हाउ मच? 800 डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट इनटू केल्विन 1073 केल्विन. यस. व्हाट इज TL? TL इज 30 डिग्री सेल्सियस. 303 केल्विन है ना. एंड W डॉट मान लो 1 किलोवाट है. Q डॉट L पूछ रहा है आपसे. फटाफट से सॉल्व करो बेटा. बताओ क्या आंसर आ रहा है. व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? जल्दी से बताओ बेटा. व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? देखो ऐसा लिखा जा सकता है ना.
Q dot L by TL is equal to what? W dot divided by TH minus TL. So beta Q dot L will be what? TL 303 into 1 divided by how much? 800 minus 30, 770 है ना, 770 बेटा ऐसा कुछ आ गया। 303 डिवाइडेड बाय 770 है ना, तो 7 4 जा 28, तो 0.4 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा रे बाबा, 0.4 किलोवाट। ओ माय गॉड, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा। आंसर इज बी बॉम्बे। आर यू क्लियर टिल हियर? क्लियर हैं, क्लियर हैं, क्लियर हैं? यस 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 यस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, बी बॉम्बे। बेटा जिन भी लोगों ने अभी तक के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक बार चैट बॉक्स पूरी लाल कर दो। इफ यू आर एबल टू सॉल्व लास्ट 3 क्वेश्चन जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, तो पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा, पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा। यस, दिव्यांशु इज एबल टू सॉल्व। ओहो हो, पारस साहिल बोल रहे हैं सर डोंट स्टॉप टीचिंग हेयर सर, सम पीपल कांट अफोर्ड प्लस सब्सक्रिप्शन। अरे ये चैनल तो मैंने स्टार्ट किया है, ये चैनल यहां तक पहुंचा है, खून पसीना लगाकर पहुंचा है रे बाबा, ऐसे नहीं चैनल यहां तक पहुंचा है। जब मैंने ज्वाइन किया था ये चैनल डेड चैनल था, एक वीडियो पे 100 व्यूज, मतलब लाइव 10 बच्चे आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तब मैंने और मेरी टीम ने पूरी मेहनत करी, तब 40,000 डेड सब्सक्राइबर थे, किसी को पता ही नहीं था ये चैनल किस यूज में था, क्या नहीं था। चैनल का नाम रखा अनअकैडमी गेट MEPIXE। ये बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर मार्च की, 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। आज की डेट में 1,20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 80,000 सब्सक्राइबर जुड़े हैं, और पूरी मेहनत करिए बेटा चैनल पे, तो छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। तो अपना बच्चा है, अपने बच्चे को कोई छोड़ता है क्या? ये तो अपना बच्चा है, अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं? टीचिंग मैं छोड़ नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अदर देन टीचिंग। टीचिंग के अलावा मुझे कुछ और आता नहीं है, तो टीचिंग मैं छोड़ नहीं सकता। ये चैनल मेरा बच्चा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। जाऊंगा कहाँ? जाए तो कहाँ जाएं, जाए तो कहाँ जाएं? बताओ। एक और चीज नोटिस करना, जितने भी आप फोटो देखते हैं बैचेज में, कभी ध्यान से सोचना अपने दिमाग में, कभी ध्यान से सोचना अपने दिमाग में, जितने भी बैचेज में फोटो देखते हो मेरा लगाकर, कभी सोचना सबसे ज्यादा क्लासें आप लोग के लिए किसने ली है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक सोचने के लिए, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर, थोड़ा सोचो बेटा, अगर मुझे छोड़ने होता तो मैं बहुत पहले छोड़ दिया होता इस यूट्यूब को। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अ डोमेस्टिक फूड फ्रीजर मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास एक डोमेस्टिक फूड फ्रीजर है जो कि मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर कितना, -15 डिग्री सेल्सियस। फाइन, द एम्बियंट एयर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। एम्बियंट एयर का टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, राइट? ओके, नाउ प्लीज ऑब्जर्व, TL इज गिवन, TH इज गिवन, TL is given, TH is given. If the heat leaks into the freezer at the continuous rate of 1.75 kilojoule per second, है ना, Q dot L दे दिया 1.75 kilojoule per second. The least power necessary to pump this heat out continuously will be nearly, है ना, ध्यान से देखना, least लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा what is the meaning of least power necessary। ठीक है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर मान के कर लो फटाफट से, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर मानकर कर लो फटाफट से, है ना। चलिए फटाफट से आंसर बताओ, फटाफट से आंसर बताओ। TL इज गिवन -15 डिग्री सेल्सियस, TH इज गिवन 30 डिग्री सेल्सियस,
केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करो। 273 माइनस 15 258 केल्विन, 303 केल्विन। Q dot L is given 1.75 किलोवाट, है ना। द लीस्ट पावर रिक्वायर्ड W डॉट दे आर आस्किंग, तो कर लो रे बाबा। Q dot L डिवाइडेड बाय TL इज इक्वल टू W डॉट डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। तो W डॉट इज इक्वल टू व्हाट, TH माइनस TL। 45 इंटू Q डॉट L 1.75 डिवाइडेड बाय TL 258, है ना। तो फटाफट से आंसर बता दो। फटाफट से आंसर बता दो बेटा, फटाफट से आंसर बता दो। व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? कितना आंसर आ रहा है? W डॉट इज हाउ मच? 0.3 किलोवाट। Can I say answer is C Chennai? Can I say answer is C Chennai? फटाफट से बताओ। बन गया ये वाला क्वेश्चन? बन गया ये वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019। A reverse Carnot engine is used for heating a building. A reverse Carnot engine is used for heating a building. Basically, this reverse Carnot engine is behaving as a reversed heat pump, reversible heat pump. It supplies 210 into 10 to power 3 kilojoule per hour of heat to the building at 20 degrees Celsius. Q dot H is given, TH is given. The outside air is at minus 5 degrees Celsius. TL is given. The heat taken from the outside will be nearly, they are asking Q dot L. लगाओ रे बाबा नेगी कट, थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल लगाएंगे और आंसर पाएंगे रे बाबा। Q dot H by TH is equal to what? Q dot L by TL. He is asking what is Q dot L. बट आपको समझ में आ गया होगा Q dot L will be equal to what? TL by TH into what? Q dot H। बेटा यहां से क्या आ रहा है फटाफट से देख लो। Q dot L is equal to TL by TH. TL is how much रे बाबा? -5. -5 means what? 268 Kelvin. Yes. TH is how much? 20 degrees Celsius. So 293 Kelvin into Q dot H 210 into 10 to power 3. तो बताओ बेटा किलो जूल पर आवर में कितना आ रहा है Q dot L? What is the value you people are getting? इसको सॉल्व के क्या आ रहा है? इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है फटाफट से बताओ। What is the answer you people are getting? Yes, Karan, very good. Sahabaj, very good. Vikas, Sid, Vamsi, excellent है रे बाबा। Yes, absolutely correct. 192 into 10 to power 3 किलो जूल पर आवर। बेटा यहां से क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं बार्क एग्जाम में या फिर किसी PSU में, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना। चलो आंसर इज ए आगरा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following devices complies with the Clausius statement of the second law of thermodynamics? Which of the following devices complies with the Clausius statement of the second law of the thermodynamics? I'm giving you 30 seconds. टाइमर आ जाओ रे बाबा, टाइमर आ जाओ रे बाबा।
चलो 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 चलो, टाइमर लगा दिया, फटाफट से आंसर करो रे बाबा। ये तो बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है। Which of the following devices complies with the Clausius statement of the second law of thermodynamics? Option A, closed cycle gas turbine. Option B, internal combustion engine. Option C, steam power plant. Option D, domestic. ये तो कोई अंधा भी बता देगा। Consequences of Clausius statement of second law of thermodynamics. Concept of refrigerator. Concept of heat pump. Direction of heat transfer. So answer is D, Delhi re baba. Chalo, next question. Next question. Next question. Next question. Two reversible engines are connected in series between a heat source and a sink. I'm having two reversible heat engines and they are connected in series between a source and sink. If the efficiencies of these engines are 60% and 50% respectively, if these two engines are replaced by a single reversible engine, then the efficiency of this single reversible engine will be R. चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। फटाफट से आंसर बताओ, 7th का आंसर क्या होने वाला है? आई एम पुटिंग द टाइमर, 20 सेकेंड्स 20 सेकंड्स 20 सेकंड में करेंगे रे पापा नेगी सोल्जर्स। फटाफट से बताओ, आपको मैंने बताया था बेटा फार्मूला ऑफ ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी सबको पता है, सबको पता है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी? ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस व्हाट? ईटा 1 ईटा 2। तो ईटा इज इक्वल टू व्हाट? 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.6 इंटू 0.5। तो यहां से क्या आ गया बेटा? 1.1 माइनस 0.3 0.8। तो इफ आई राइट इन परसेंटेज 80%, आंसर इज सी चेन्नई। आंसर इज सी चेन्नई। आर यू क्लियर टिल हियर? यस, चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो अगला देखेंगे। An engine works on the basis of Carnot cycle operating between two temperatures of 800 Kelvin and 400 Kelvin. If the heat supplied is 100 kilowatt, the output is 30 seconds। 30 seconds मिलेगा बस, फटाफट से कर डालो रे बाबा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको करो फटाफट से, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है रे बाबा। चंपू क्वेश्चन है, चंपू क्वेश्चन है, चंपू क्वेश्चन है बेटा। जैसे ही आपको दिखा TH 800 केल्विन है एंड TL इज 400 केल्विन, दैट मीन्स थर्मल एफिशिएंसी इज 50%। तो उसका जो भी आप हीट सप्लाई करोगे उसका आधा वर्क आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी गेटिंग रिजेक्टेड। अगर मैथमेटिकली देखना है तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, QH बाई TH इज इक्वल टू व्हाट? Q डॉट H बाई TH इज इक्वल टू व्हाट? W डॉट डिवाइडेड बाई TH माइनस TL। तो बेटा W डॉट निकाल लो रे बाबा। W डॉट विल बी इक्वल टू व्हाट? TH माइनस TL। 800 माइनस 400 डिवाइडेड बाई TH। TH इज हाउ मच रे बाबा? 800 इंटू Q डॉट H। Q डॉट H इज हाउ मच? 100 किलोवाट। बेटा इसको आप सॉल्व करोगे, आपका W डॉट आ जाएगा कितना? 50 किलोवाट। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। आंसर इज ए, आगरा। ओहो हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन रे बाबा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, दिस इज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो चलो चलो, shall we go for the next question? Yes, Chandan very good, Jay very good, Vikramjit very good, Vishal, Mohammed Jam very good beta, excellent excellent excellent। चलो चलो चलो, next question। A reversible heat engine rejects 80% of the heat supply during a cycle of operation। क्या बोल रहा है? A reversible heat engine rejects 80% of the heat supply during a cycle of the operation। जितना भी हीट सप्लाई करा उसका 80% रिजेक्ट हो गया, तो कितना वर्क में कन्वर्ट हुआ? 20%। सो कितनी थर्मल एफिशिएंसी हो गई? 20%, 0.2। दैट्स इट। If the engine is reversed and operates as a refrigerator, then its coefficient of performance shall be। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। What a beautiful question। 30 seconds, come on everyone, I want answer of this question। फटाफट से बताओ रे बाबा, इसका आंसर क्या होगा? ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़े।
बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा। दिव्यांशु वेरी गुड, विकी वेरी गुड। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? व्हाट इज द आंसर यू पीपल? अरे बहुत ही इजी है रे बाबा, बहुत ही इजी है। उसने क्या बोला? व्हाट ही सेइंग? रिजेक्ट्स हाउ मच? Rejects how much? 80% of the heat supplied. So that means converts into work how much? 20%. So that means thermal efficiency of reversible heat engine is how much? 0.2. अरे 20% means 0.2 ना रे बाबा। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था COP of reversible refrigerator will be what? 1 by thermal efficiency of reversible heat engine minus 1. So COP of reversible refrigerator is equal to what? 1 by 0.2 minus 1. So anyone in the class can tell me what is the COP of the reversible refrigerator? 5 minus 1 is how much? 4. So what is the answer you people are getting? Answer is C, Chennai. बेटा मान लो आई वॉन्ट बी बॉम्बे टू बी करेक्ट। अगर मैं चाहता हूं, ये मेरे दिल की चाहत है कि ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट, तो क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया जाए? क्या क्वेश्चन कर दिया जाए? मान लो मैं डेटा चेंज नहीं करना चाहता, मैं डेटा चेंज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक वर्ड चेंज हो जाए और आंसर बी बॉम्बे हो जाए। तो व्हाट शुड बी द चेंज? What should be the change? Anyone in the class? Alright, Champo. In place of refrigerator, you write heat pump. That's it. 1 by thermal efficiency of reversible heat engine. So 1 by 0.2. Answer will be 5. Next question. Next question. Yes, yes, yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताड़ा ताड़ी रे बाबा, ताड़ा ताड़ी रे बाबा। फटाफट से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। A heat engine working on Carnot cycle receives heat at the rate of 50 kilowatt from a source at 1300 Kelvin and rejects it to a sink at 400 Kelvin. The heat rejected. अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है। Reversible heat engine is given in the question. TH is given 1300 Kelvin, TL is given 400 Kelvin. He is asking how much is the rate of heat rejection. इससे easy question क्या होगा रे बाबा? इससे easy question क्या होगा? फटाफट से कर डालो। 30 seconds, 30 seconds, not beyond that. 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे रे बाबा, फटाफट से। Q डॉट H इज हाउ मच? 50 किलोवाट डिवाइडेड बाय TH इज हाउ मच? 1300 केल्विन इज इक्वल टू व्हाट? Q डॉट L डिवाइडेड बाय व्हाट? TL इज हाउ मच रे बाबा? बस इतना ही तो करना है गुरु। ये देखो, ये देखो, 2 0 से 2 0 हो गया, स्वाहा। So what is the Q dot L? 200 divided by 13. So can I say 15.4 kilowatt? Answer is B Bombay. Can I say answer is B Bombay? Can I say answer is B Bombay? बेटा मुझे एक चीज ईमानदारी से बताना, अभी तक मैंने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर। आई स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ गेट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 एंड दिस इज द 10th क्वेश्चन। ये 10 में से कितने लोगों ने 10 के 10 आंसर कर दिए रे पापा? हाउ मेनी ऑफ यू गेव ऑल द 10 करेक्ट आंसर्स? ये 10 में से कितने लोगों ने 10 के 10 सही आंसर दे दिए रे पापा? फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे। दोज हु हैव गिवन ऑल द 10 करेक्ट आंसर्स, टाइप इन चैट बॉक्स रे पापा। यस, पारस छा गए गुरु, विशाल छा गए गुरु। फोड़ देंगे रे बाबा। गेट आएगा, गेट फोड़ेंगे। बार्क आएगा, बार्क फोड़ेंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज आएगा, वो भी फोड़ेंगे रे बाबा। नेगी सोल्जर्स, यस 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 यस, एक्सेलेंट है रे बाबा। आपके सामने सेकंड लॉ पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर पहले आ गया था उसके बाद मैंने पढ़ाया। सेकंड लॉ मैंने स्टार्ट किया था लास्ट संडे। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन हुआ है। सेकंड लॉ से 2 क्वेश्चन आए। पहले 2 क्वेश्चन 1 2 आप लोग फोड़ चुके हैं। चलिए, चल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, चलो 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 रे बाबा, चलो रे बाबा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट 1, Clausius inequality is valid for all cycles, reversible or irreversible, including
refrigeration cycles. Statement 2, Clausius statement is a negative statement which has no proof. फटाफट से इसका आंसर बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओ बेटा। क्या मैं बोल सकता हूं स्टेटमेंट 1 is correct? Yes, it is absolutely correct. Clausius inequality is valid for all cycles, whether it is reversible, irreversible, and of course it is valid for reversible cycle na, doesn't matter that is power producing cycle or power consuming cycle. So first one is correct, and of course it is a negative statement. क्यों बोला मैंने नेगेटिव स्टेटमेंट? अरे इट इज इम्पॉसिबल, नेगेटिव वर्ड से तो स्टार्ट हो रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट व्हिच हैज नो प्रूफ. डिड आई गिव यू द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट? नहीं दिया ना, क्लॉसियस स्टेटमेंट नहीं. अरे चंपू कंफ्यूज नहीं होना है रे बाबा, मैंने क्लॉसियस इनइक्वालिटी, चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपो. Clausius statement is something different, which is one of the statement of the second law of the thermodynamics, and Clausius inequality is something different which I derived at the end. तो यहां कंफ्यूज मत होना, ये भी सही है. तो आंसर इज बी बॉम्बे, आंसर इज बी बॉम्बे. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, लेकिन दूर दूर तक दोनों का आपस में कोई रिलेशन है नहीं. आंसर इज बी बॉम्बे. क्लियर है? क्लियर है? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था. इसमें धोखा मत खा जाना रे बाबा, इसमें धोखा मत खा जाना रे बाबा. यस, आंसर इज बी बॉम्बे. चलो चलो चलो, यस यस यस. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल. Consider the following conditions for the reversibility of cycle if you want to have a cycle to be reversible. The P and T, pressure and temperature of the working substance, must not differ appreciably from those of the surrounding at any state in the process. All the processes taking place in the cycle must be extremely slow. The working part of the engine must be friction free. Which of the following conditions are correct? बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये सही है. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नेग्लिजिबल डिफरेंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर होना चाहिए. प्रोसेसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेसेस, एंड ऑफ कोर्स फ्रिक्शन फ्री. तो आंसर है वो ऑप्शन जिसमें तीनों के तीनों है. आंसर इज ए आगरा. 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर. यस विकास, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ये बढ़िया क्वेश्चन है. दिस इज नाइस क्वेश्चन, दिस इज नाइस क्वेश्चन. लेट अस रीड द क्वेश्चन. अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग ऑन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 300 केल्विन एंड 1000 केल्विन प्रोड्यूसेस 14 किलोवाट ऑफ पावर. आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, क्वेश्चन में टीएल दे दिया गया है 300 केल्विन, टीएच इज गिवन 1000 केल्विन एंड डब्ल्यू डॉट इज गिवन 14 किलोवाट. If the calorific value of the fuel is 40,000 kilojoule per kg, the fuel consumption will be. फटाफट से कर डालो बेटा. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं, फटाफट से करेंगे, बताएंगे व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ बेटा. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ. टाइमर लगा रहा हूं. बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा. रिवर्सिबल हीट इंजन इज गिवन ना. If reversible heat engine is given, you can write Q dot H is equal to what? Q dot H by TH is equal to what? W dot divided by what? TH minus TL, right? I hope each and everyone is clear till here. Now what will be Q dot H? चलो पहले Q dot H निकाल लो. Q dot H will be equal to what? TH divided by TH minus TL into W dot. अब ये Q dot H क्या होगा? Rate of heat supplied. Mass flow rate of the fuel into calorific value of the fuel is equal to what? TH upon TH minus TL into W dot. इसको यहां भेज दो. तो mass flow rate of the fuel will be equal to what? TH upon what रे बाबा? TH minus TL W dot divided by calorific value, right? यही आ रहा है ना. चलो अब ध्यान से करना. Mass flow rate of fuel is how much? TH. TH is 1000. TH minus TL 700 Kelvin. W dot 14 kilowatt divided by what?
40,000 किलो जूल पर केजी, राइट। बेटा ध्यान से देखना, 3 जीरो से ये 3 जीरो स्वाहा, राइट। एंड ज़्यादा तो कुछ नहीं, ये 7 यहाँ पे ऑफकोर्स 100 आएगा, 7 2 जा 14, 2 आएगा, एंड दिस मस्ट बी 20। तो यार ये कितना आ रहा है? मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इज कमिंग 1/2000 kg per second, but he is asking kg per hour। kg per hour के लिए क्या करेंगे? एक घंटे में 3600, 3600 सेकेंड्स, तो 3600 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2000 kg पर आवर। बेटा यहां से क्या जाएगा? और अब तो ये चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, 1.8। तो आंसर इज m dot f, mass flow rate of fuel is 1.8 kg per hour। बेटा सबको समझ में आ गया होगा, everyone must be able to understand। आंसर इज बी, बॉम्बे। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, आई थिंक दिस इज नाइस क्वेश्चन। मजा आ गया बेटा इस वाले क्वेश्चन में, मजा आ गया इस वाले क्वेश्चन में। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। बेटा पूरी चैट बॉक्स लाल हो जाए अगर आपको मजा आ रहा है। इफ यू आर एंजॉइंग द क्वेश्चन, पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो। 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी 13 पर पहुंच गए, टोटल 50 सॉल्व करने वाले हैं हम लोग बेटा। टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल 50 और करेंगे, तो आपका कल सेकंड लॉ कंप्लीटली ओवर हो जाएगा, मेरा पूरा प्रॉमिस ओवर हो जाएगा। जो कि मैंने आपको बोला था कि सारे गेट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ईएससी के करवाऊंगा, कन्वेंशनल करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, आपको माई 10 न्यू प्रॉब्लम करवाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें करवा दी कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ। तो फटाफट से पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा, मजा 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 मजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही पहचाना हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने करवा रखा है। A solar collector receiving solar radiation at the rate of 0.6 kilowatt per meter square transforms it to the internal energy of the fluid at an overall efficiency of 50%. The fluid heated to 350 Kelvin is used to run a heat engine which rejects heat at 313 Kelvin. If the heat engine is to deliver 2.5 kilowatt power, the minimum area of the solar collector required would be। इसका डायग्राम बना देता हूं आप लोग के लिए, इसका डायग्राम बना देता हूं आप लोग के लिए। देखो बेटा, दिस इज योर ब्यूटिफुल सोलर कलेक्टर, दिस इज योर ब्यूटिफुल सोलर कलेक्टर, है ना। इसका एरिया दिया हुआ है। अच्छा, एरिया मिनिमम एरिया निकालना है, एरिया मिनिमम होना चाहिए। मान लो ए है एरिया, और इस सोलर कलेक्टर को सोलर रेडिएशन मिल रही है एट द रेट ऑफ व्हाट? 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? The solar collector is supplying the heat to the working fluid of the heat engine. This is the heat engine, है ना। And let me say working fluid of the heat engine is receiving the heat at 350 Kelvin, right? तो ये आपका heat engine है, and of course the remaining heat will be getting rejected to the ambient। ऐसा कुछ है क्वेश्चन, है ना। चलो अब ध्यान से देखना, if the area is A and if the rate of solar radiation is 0.6 kilowatt per meter square, that means this solar radiation is receiving the solar radiation at the rate of 0.6 A, है ना। ये फ्लक्स दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर में। इफ द एरिया इज A मीटर स्क्वायर, 0.6 A, ऑफ कोर्स efficiency is 50%, so you must be able to understand the rate at which heat is getting supplied to this working fluid is 0.3 A, है ना। तो आपसे पूछा क्या है? मिनिमम एरिया।
बेटा ध्यान से सुनना, if I want to write thermal efficiency of a heat engine, it will be what? W dot divided by QH, right? So efficiency of heat engine will be what? W dot divided by 0.3A. तो यहाँ से A क्या आ जाएगा बेटा? W dot divided by 0.3 efficiency of heat engine. For a given power output, I will be having the minimum area of the solar collector if thermal efficiency is maximum. अगर thermal efficiency maximum है तो area of solar panel will be minimum. और ये मैक्सिमम तब होगी व्हेन माई हीट इंजन इज रिवर्सिबल हीट इंजन, है ना। अब तो आप लोग कर लोगे, अब तो आप लोग को पता है कैसे करना है ना। टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं बेटा, टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं, ये 350 केल्विन दिया हुआ है एंड दिस इज गिवन एज 313 केल्विन। तो अब आप समझदार हो, मैं आपको हिंट दे देता हूं, मैं आपको हिंट दे देता हूं, चाहे तो इसको थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 2.5 किलोवाट, है ना। बस ये सब मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ द सोलर कलेक्टर, माई हीट इंजन मस्ट बी रिवर्सिबल हीट इंजन, बस उतना ही है। बाकी तो अपन लोग फिर वो लगा लेते हैं अपना नेगी कट, है ना, आ जाएगा आंसर। नेगी कट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। नेगी कट इज सेइंग Q dot H by TH is equal to W dot divided by TH minus TL. Q dot is how much? 0.3A is equal to TH is how much? 350. 350 divided by TH minus TL. 37. 350 minus 313 is 37 into W dot. W dot is how much? 2.5 kilowatt. बताओ बेटा यहां से A की वैल्यू कितनी आ रही है? लगभग 79 मीटर स्क्वायर आएगी ना। आंसर इज डी दिल्ली। कर लिया आप लोगों ने? आंसर डी दिल्ली आ रहा है। वेरी गुड बेटा। राजशेखर वेरी गुड। चांद बाबू वेरी गुड बेटा। विकास वेरी गुड। दिव्यांशु वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन बना लिया ना सबने? देखो अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा क्या करना है क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलें बेटा। Shall we go for the next question? Question number 15. और मजा 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 मजा, अल्ट्रा क्लियर है रे बाबा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वेरी गुड तरुण। चलो अब ध्यान से देखना बेटा। Two reversible refrigerators are arranged in series and their COPs are 5 and 6 respectively. The COP of the composite refrigeration system would be. बेटा ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कैसे करना है। इफ आई एम हैविंग टू रेफ्रिजरेटर्स इन सीरीज व्हाट विल बी द कंबाइंड COP? याद है किसी को? फार्मूला किया था हम लोगों ने डेराइव। The COP of the combined system will be what? COP of first refrigerator into COP of second refrigerator divided by what? Divided by what? 1 plus COP of first refrigerator plus COP of second refrigerator. So combined COP is equal to what? COP of first refrigerator is 5 into COP of second refrigerator is 6 divided by 1 plus 5 plus 6. तो कंबाइंड COP 30 by 12. Can I say 2.5? Can I say answer is B Bombay? Can I say answer is B Bombay? फटाफट से कंफर्म कर दो। ये आ गया सबका सिद्ध, वेरी गुड। चंदन वेरी गुड। दिव्यांशु, सैम छा गए। गौरव एक्सीलेंट। ओ हो ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल, एक्सीलेंट है रे बाबा, excellent. I hope each and everyone is able to solve. Let us go to the next question. The COP of an ideal refrigerator of capacity
2.5 ton is a 5. Okay, the power output, the power of the motor required to run the plant is, बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, COP of ideal refrigerator. What is the meaning of ideal refrigerator? In the question clearly they have given reversible refrigerator of capacity 2.5 ton. This is the refrigeration effect which is required by from this reversible refrigerator 2.5 ton. यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बेटा, in 1 ton you will be having 3.5 kilowatt. आप कर लो, Q dot L is given how much? 2.5 ton. That means Q dot L is basically 2.5 into 3.5 kilowatt, है ना? तो COP क्या होगी बेटा? COP of reversible refrigerator will be what? Q dot L divided by W dot. So W dot is equal to what? Q dot L 2.5 into 3.5 divided by COP of reversible refrigerator is how much? 5. तो यार यहां से देख लो, this and this is getting swaha and this is getting swaha 1.75. So can I say W dot is 1.75 kilowatt. फटाफट से कंफर्म कर दो, फटाफट से कंफर्म कर दो. यही आ रहा है? This is what we are getting बेटा, this is what we are getting. 16 answer is the D Delhi. Can I say 16 answer is a D Delhi? बन गया सबसे. Let us go to question number 17. देखो, question number 17 is what? A refrigeration plant working on Carnot cycle is designed to take the load of 4 ton. Q dot L is given 4 ton of refrigeration. The cycle works between 2 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. TL is given, TH given. The power required to run the system is, कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे? देखो, Q dot L divided by TL is equal to W dot divided by what? TH minus TL. So W dot is equal to TH minus TL. 27 minus 2 is 25 divided by TL. TL is how much? 275 into Q dot L. Q dot L is how much? 4 ton. 4 into 3.5. तो यहां से देखो बेटा, थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 5 से स्वाहा हो जाएगा, है ना? यहां कर दो 5 से स्वाहा. 0.7, 5 5 are 25, 5 5 are 25. एक और बार स्वाहा कर दो, 5 11, है ना? तो 5 4 are 20, 20 into 0.7, 14 divided by 11. बताओ बेटा, what is the answer you people are getting? Can I say 1.27 kilowatt? Can I say for the question number 17 answer is A, Agra? Can I say for question number 17 answer is A, Agra? फटाफट से कंफर्म कर दो. आगे बेटा, आंसर A, Agra. वेरी गुड अक्षय, पारस वेरी गुड, अनीता वेरी गुड बेटा. Let us go to the next question. Question number 18. Question number 18. A refrigeration plant is designed to work between minus 3 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. TL is given, TH is given. The plant to work on Carnot cycle. If the same plant is used as a heat pump system, then the COP of the heat pump becomes. ये तो बहुत easy है. COP of heat pump पूछ रहा है, COP of heat pump पूछ रहा है, निकाल लो. What will be the COP of heat pump if I am having a reversible heat pump? Because it will be operating on reverse Carnot cycle. TH 300 divided by TH minus TL 30. COP of reversible heat pump is how much re baba? 10. Oh my God, Negi soldiers are on fire re baba. Negi soldiers are on fire re baba. Answer is A, Agra. Yes, 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 yes.
बन गया चंपू क्वेश्चन है, चंपू क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 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 फटाफट से देखते हैं। इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर द हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर इज 1500 किलोजूल पर केजी। तो स्मॉल क्यू एच इज गिवन, किलोजूल पर केजी मीन्स स्पेसिफिक हीट रिजेक्टेड। तो स्मॉल क्यू एच इज गिवन of the refrigerant flow and the work done by the compressor is 250 kilojoule per kg. Small w is given, specific work input is given. The work the COP of the refrigerator is, what will be COP of the refrigerator? Small QL divided by small w. What will be small QL? Small QH minus small w divided by small w. What is small QH? 1500 kilojoule per kg. What is small w given in the question? 250 divided by small w, 250. 1250 divided by 250. So COP of the refrigerator is 5. COP of the refrigerator is 5. Answer is A, Agra. Answer is A, Agra. Let us go to the next question. Question number 20. An ideal heat engine operating on a reversible cycle produces 9 kilowatt. W dot is given. The engine operates between 27 degrees Celsius and 927 degrees Celsius. TL is given, TH is given. What is the fuel consumption given that the calorific value of the fuel is 40,000 kilojoule per kg? ये तो अभी के अभी किया है, ये तो अभी के अभी किया है। Q dot H divided by TH, W dot divided by TH minus TL. Q dot H क्या हो जाएगा बेटा? मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इनटू कैलोरिफिक वैल्यू डिवाइडेड बाय TH इज इक्वल टू W dot डिवाइडेड बाय TH माइनस TL, है ना? तो अपन को क्या निकालना है? अपन को मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल निकालना है। तो मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इज व्हाट? TH अपॉन TH माइनस TL इनटू W डॉट डिवाइडेड बाय कैलोरिफिक वैल्यू। फटाफट से सब्स्टिट्यूट करो बेटा। TH is how much? 927 degrees Celsius. So if you convert into Kelvin, it will be 1200 Kelvin. 1200 Kelvin divided by TH minus TL, 900. W dot is how much? 9 kilowatt divided by calorific value 40,000. इसको आप सॉल्व करोगे, आपका kg पर सेकंड में आएगा. He is asking in kg per hour. 3600 से मल्टीप्लाई कर देना. Multiply by 3600 and tell me what is the answer you people are getting. On solving, you will be getting 1.08 kg per hour. This is the answer, beta. This is the answer. Answer is टीचर नहीं. याद रखना, इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आएगा kg पर सेकंड में. यू मल्टीप्लाई बाय 3600, देन यू विल बी गेटिंग द आंसर इन kg पर आवर. बेटा 20 क्वेश्चन हो चुके हैं. वी हैव सॉल्व 20 क्वेश्चंस. कोई है क्या अभी क्लास में ऐसा? इज देयर एनीवन अटेंडिंग लाइव जिन्होंने 20 के 20 सही आंसर दिए? इज देयर एनीवन हु हैज गिवन ऑल द 20 क्वेश्चंस करेक्ट? इज देयर एनीवन इन द क्लास हु हैज गिवन आंसर ऑफ ऑल द 20 क्वेश्चंस करेक्ट? है कोई? विराट वेरी गुड. दिव्यांशु के 18 सही है. चंदन वेरी गुड. कृष्ण वेरी गुड बेटा. श्रेय वेरी गुड. पारस के 18 सही है. वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. विशाल के 90 सही है. विकी इज ऑन फायर. विकी पूरे फायर पे है रे बाबा. नवनीत 20 आउट ऑफ 20. बहुत सही, बहुत सही. रविंद्रा बोल रहे हैं स्पीड कम है, स्पीड बढ़ाओ रे बाबा. चलो shall we go for the next question? yes. श्रेय ने भी सारे 20 के 20 आंसर दिए. बेटा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. One reversible heat engine operates between 1000 Kelvin and T2 Kelvin, and another reversible heat engine operates between T2 Kelvin and 400 Kelvin. If both the engines has same heat put,
same heat input and output, then the temperature T2 must be equal to, फटाफट से करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती मत करना. This is given 1000 Kelvin. This is given T2. चंपा 400 Kelvin ना. हाँ, अब ध्यान से देखना, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली. There is a reversible heat engine which is operating between 1000 Kelvin and T2. There is another reversible heat engine which is operating between T2 and 400 Kelvin. Taking the heat, converting some part of the heat into work and rejecting remaining heat, right? H12 W1, चलो, of course reversible heat engine 1. अब क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है the heat input and heat output for both reversible heat engines. This is your reversible heat engine 2. In the question they have given heat input and heat output for both reversible heat engines are same. बेटा याद रखना, आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा होगा, सर if heat input and heat output are same, W will be equal. Of course W will be equal, there is no doubt, W1 will be equal to W2. Immediately you will be tempted to apply that formula where I told you, if I am having two heat engines in series, two reversible heat engines in series, then the intermediate temperature will be arithmetic mean of other two temperatures. Basically मैंने बताया था ना, Tm is equal to Th plus TL by 2. बेटा याद रखना, उसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी. There was one condition which I told you, whatever is rejected by reversible heat into the intermediate thermal energy reservoir, that must be received by the second reversible heat engine which is in series, QM. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो ये अलग चीज है. देखो, here it is QL, here it is QH. So remember, you should not apply that formula. Rather you think carefully क्या हो रहा है. अरे W1 W2 सेम है. What will be the thermal efficiency of reversible heat engine 1? W1 by QH. What will be the thermal efficiency of reversible heat engine 2? W2 by QH. अरे W1 is equal to W2. So basically this is indirectly saying I am having two reversible heat engines in series which are having same thermal efficiency, and if they are having same thermal efficiency, T2 must be equal to what? Geometric mean of what? 1000 and 400. Answer will be how much? Can I say 632.5 Kelvin? Answer is B Bombay. फटाफट से कंफर्म करो, समझ में आ गया सबको? I hope everyone is clear. I hope each and everyone is clear. Answer is B Bombay. फटाफट से कंफर्म कर देंगे बेटा. ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था. बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? यहां तक सब लोग क्लियर है? आंसर इज बी बॉम्बे. I hope you people are able to understand what is happening in this. Yes, Noel Nakha. Yes. Thank you sir. इस क्वेश्चन में बहुत परेशान था आंसर, आज इसका आंसर मिल ही गया. ओके. नवनीत क्लियर है बेटा? अब नवनीत क्लियर है? अरे नेगी 10 के पास हर आंसर है रे बाबा.
डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। चलो रे बाबा चलो रे बाबा चलो रे बाबा। चल वी मूव फॉरवर्ड बेटा, आगे चलेंगे आगे चलेंगे। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। A heat engine receives heat at the rate of 2500 kilojoule per minute and gives an output of 12.4 kilowatt. Its thermal efficiency is nearly, अरे ये क्या क्वेश्चन है रे बाबा, ये क्या? Heat engine receives heat at the rate of 2500 kilojoule per minute. Q dot H is given in kilojoule per minute and the output is in kilowatt, 12.4 kilowatt. बस थोड़ा सा गेम चेंज करना है यूनिट्स में, बाकी तो सब इजी है। Thermal efficiency of heat engine will be what? W dot divided by Q dot H. So thermal efficiency of heat engine will be what? W dot. W dot is how much रे बाबा? 12.4 kilowatt divided by Q dot H. Q dot H is how much रे बाबा? 1500 divided by 60. फटाफट से आंसर बताओ बेटा कितना आ रहा है? What is the answer you people are getting for 22? यहां से करोगे तो 0.3 आ जाएगा ना, 0.3 आ जाएगा almost. So can I say efficiency of heat engine is at 30%? Answer is D Delhi. फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा। Can I say answer is D Delhi? Yes 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 beautiful. छा गए गौरव। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा। चलो 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 नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से देखो बेटा क्या दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में। A reverse Carnot engine removes 50 kilowatt from a heat sink. The temperature of the heat sink is 250 Kelvin and the temperature of the heat reservoir is 300 Kelvin. The power required of the engine is, ध्यान रखना बेटा रिवर्स कार्नोट साइकिल पर ऑपरेट हो रहा है तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये समझना है, आपको थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल निकालना है, लगाना है। Q डॉट L इज गिवन, TL इज गिवन, TH इज गिवन, बस उतना ही है, उतना ही है। Q डॉट L बाय TL इज इक्वल टू W डॉट डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। He is asking W dot Q dot L by TL into TH minus TL. TH minus TL is 50 divided by TL is 250 Kelvin. Q dot L is how much रे बाबा? यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 किलोवाट। That's it. लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट आप लोग कर लोगे, आपको तो मैंने बताया हुआ है। थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल, वहां से नेगी कट लगाओ, आंसर इज ए अगरा। Shall we go for the next question? Shall we go for the next question? Yes, 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 yes. चलो 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 let us go to the next question. असर्जन रीजन है बेटा, फटाफट से देखना। स्टेटमेंट A, cyclic integral del Q by 2 is equal to 0. The cycle is reversible. Reason, cyclic integral del Q by T greater than 0, the cycle is irreversible and possible. फटाफट से बताओ, ये तो सही है और ये क्या है, गलत है ना। अरे साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 जब होता है तब साइकिल आपकी पॉसिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है। सो ए इज ट्रू, statement 1 is true, statement 2 is false, assertion is true, reason is false. So answer is C Chennai, answer is C Chennai. Let us very good beta, Ulak very good, Noel Nakka very good है रे बाबा। Let us go to the next question, question number 25. Question number 25, a Carnot engine receives 100 kilojoule of heat at 600 Kelvin. Heat is rejected at 300 Kelvin. The displacement volume is a 0.2 meter cube. The mean effective pressure is, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या इस इंजन में आप लोग पढ़ोगे। mean effective pressure is basically network divided by displacement volume or you can say swept volume, whatever. चलो फटाफट
फटाफट से निकालो, अब फटाफट से निकालो, फटाफट से बताओ। अ कार्नोट इंजन रिसीव्स 100 किलोजूल ऑफ हीट एट 600 केल्विन, हीट इज रिजेक्टेड एट 300 केल्विन। बेटा यहां से आपको जब भी ऐसा कुछ दिया हो ना तो आपको समझ में आना चाहिए थर्मल एफिशिएंसी विल बी 50%। TH इज 600 केल्विन, TL इज हाउ मच 300 केल्विन। जरा ध्यान से देखना बेटा, TH इज हाउ मच 600 केल्विन, TL is how much 300 Kelvin. So what is the meaning of this? Thermal efficiency of the Carnot engine is how much 50%. और जैसी थर्मल एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की 50% आ गई, जितना भी आप हीट सप्लाई करोगे का आधा कन्वर्ट होगा वर्क में। तो आपको समझ में आ रहा होगा नेट वर्क विल बी हाउ मच 50 किलो जूल। और सब्स्टिट्यूट करो वहां पर मीन इफेक्टिव प्रेशर, we will be representing by PM in IC engines. It must be equal to what? Net work. Net work is how much? 50 kilojoule. 50 kilojoule. 50 into 10 to power 3 divided by displacement volume 0.2 है ना। तो यार यहाँ से क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 100 ना, नहीं कितना हो जाएगा, डिवाइड करना है 5 से मल्टीप्लाई 250 इंटू 10 टू पावर 3। तो इन लोगों को समझ में आ रहा है, दिस इज कमिंग 2.5 बार ना। कैन आई से आंसर इज बी बॉम्बे, आंसर इज बी बॉम्बे। बेटा आधी जर्नी पूरी हो गई है, हाफ ऑफ द जर्नी इज ओवर। हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। है कोई क्लास में ऐसा जिसने 25 के 25 सही अभी तक? टुडे आई प्लान्ड 50 क्वेश्चन। आज मैंने प्लान किया था कि आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सामने देखते देखते। है कोई ऐसा जिसने सारे 25 आंसर सही दिए हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में कर दो कमेंट, चैट बॉक्स में टाइप कर दो अगर आपने सारे के सारे 25 सही दिए। 23 सही दिए हैं चंदन ने, चलो वेरी गुड। 22, 24, ओके 24, ओहो हो। चलो देखते हैं 50 में, देखते हैं आज सबसे ऊपर कौन रहेगा। आउट ऑफ 50 वी विल सी। बेटा चैट बॉक्स लाल कर दो अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आप सारे क्वेश्चंस बना पा रहे हो, आप सारे क्वेश्चन समझ पा रहे हो, यार चैट बॉक्स लाल हो जानी चाहिए। मेक श्योर चैट बॉक्स इज कंप्लीटली रेड। आ जाओ रे बाबा, यस 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 यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। An air conditioning system operating on the reverse Carnot cycle is required to remove heat from the room at the rate of 25 kilowatt to maintain its temperature constant at 20 degrees Celsius. Beta Q dot L is given 25 kilowatt and this is given TL 20 degrees Celsius. The temperature of the surrounding being 35 degrees Celsius. TH is given. The power required to operate the air conditioning system will be चंपू, ये तो नेगी कट है रे बाबा। नेगी कट क्या बोलता है? Q dot L divided by TL is equal to what? W dot divided by what? TH minus TL. So W dot is equal to what? TH minus TL. 35 minus 20 that is a 15 divided by TL. 20 को कन्वर्ट करो केल्विन में, 20 डिग्री सेल्सियस यू कन्वर्ट इनटू केल्विन, यू विल बी गेटिंग 293 केल्विन इनटू Q dot L. Q dot L is how much? 25. फटाफट से आंसर बता दो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W dot you people are getting from here for question number 26? Can I say I'm getting 1.28? 1.28? Yes, 1.28 किलोवाट। बेहतरीन, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा। Answer is A, Agra. Answer is A, Agra. Let us go to the next question. An ideal refrigerator based on reverse Carnot cycle works between minus 23 degrees Celsius and plus 27 degrees Celsius. TL is given, TH is given. What will be the required power in kilowatt if the cooling rate of 1.5 kilowatt is desired? अरे इसमें क्या है रे बाबा चंपू, ये तो पैक्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, इसमें तो कुछ है ही नहीं। there is nothing in the question. Q dot L by TL is equal to what? W dot divided by TH minus TL. सारे क्वेश्चन एक बार ही करवा दे रहा हूँ बेटा, एक बार आप कर लो, उसके बाद तो आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं। 27 minus 23 that means 50 divided by TL. TL is how much? Minus 23. That means 250 Kelvin. Q dot L is how much? 1.5. ये तो कोई अंधा भी बता देगा। W dot is coming how much? 0.3 kilowatt. Answer is
B Bombay. Answer is B Bombay. I hope each and everyone is clear till here. Chalo, shall we go for the next question? Shall we go for the next question? Yes, yes, yes. Question number 28. The COP of a the COP of an ideal refrigerator is N. If the machine is operated as a heat pump between the same temperature limits, COP will be और चंपू ये मैंने बताया हुआ है रे बाबा. COP of heat pump, reversible heat pump will be what? COP of reversible refrigerator plus 1. So what will be the answer? N plus 1. Let us go to the next question. 29. ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना, इसको ध्यान से करना. देखो, in the figure shown above, E is the heat engine, is heat engine with efficiency of 0.4. Efficiency is given 0.4. That means work output will be 0.4 times of Q1. And R is the refrigerator. ये जो R है वो refrigerator है. If Q2 plus Q4 is equal to 3Q1, Q2 ये है, 4 ये है, is equal to 3Q1. One is this. The COP of the refrigerator will be, देखो बेटा ध्यान से करना, what will be the COP of refrigerator? Desired effect, which is the heat extracted divided by work input. Let me say work input is the W. तो Q3 by W, बस ये Q3 by W निकालना है बेटा कैसे भी करके. तो एक काम करता हूँ, जो इक्वेशन दी है उसे लिखो. प्लस Q4 is equal to what? 1. Try to convert each and everything into Q3 and W. कैसे कन्वर्ट होगा देखो. Q2 can be written as 1 minus W. Q4 can be written as what? ये जो Q4 है इसको क्या लिख सकते हैं? 3 plus W is equal to 3Q1. W is getting swaha. So what I'm getting? Q1 plus Q3 is equal to 3Q1. That means Q3 is equal to 2Q1. Right? यार बस अब W चाहिए. आ गया W. देखो कैसे आएगा. Thermal efficiency is given 0.4. 0.4 is equal to what? W by Q1. So Q1 is equal to how much? 2.5 W. हाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. Q3 is equal to 2 into 2.5 W. So Q3 by W will be equal to 2 into 2.5, that is a 5, and this is your COP of the refrigerator. So what is the answer? Answer is C Chennai. What a beauty, what a beauty, what a beauty. आया किसी का आंसर बेटा सी चेन्नई. बहुत इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है. आपको चीजों को समझना पड़ेगा और कुछ नहीं करना. देखो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज बेसिकली Q3 by W. ये तो सबको समझ में आ गया होगा. अरे चंपू Q3 by W कैसे है सर? ये देखो, दिस इज द हीट एक्सट्रैक्टेड Q3 एंड दिस इज द नेट वर्क इनपुट W. तो Q3 by W विल बी द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर. अब आपको वो Q3 by W की वैल्यू निकालनी, तो मैंने क्या किया, ये जो Q2 Q4 थे इनको कन्वर्ट कर दिया Q1 Q3 एंड W की फॉर्म में. W इज गेटिंग स्वाहा. देन आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ Q1 इन टर्म्स ऑफ W व्हिच इज इक्वल टू 2.5 W. बन गया सबसे वाला क्वेश्चन. आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू सॉल्व. आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू सॉल्व. फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा. यस पुलक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट है रे बाबा. Shall we go for the next question? Yes, yes, yes. Beautiful, beautiful. Let us go to question number 30. Practically, it is not feasible to design an engine which closely follow the Carnot cycle for the following reason. Transfer of heat energy at constant temperature is very difficult to achieve. Isentropic processes are very fast processes. It makes use of smaller pressure ratios. Thermal efficiency is not the function of source and sink temperatures. यार ध्यान से देख लो, ये तो सही है. आइसोथर्मल हीट इंटरेक्शंस आर वेरी डिफिकल्ट, ये भी सही है. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर वेरी फास्ट, ये गलत है, ये गलत है. तो आंसर इज 1 and 2, 1 and 2.
1 and 2 तो कहीं है ही नहीं, 1 and 2 तो कहीं है ही नहीं रे बाबा। चेक करो यार एक बार, इसमें डाउट आ रहा है मुझे। वो देखो ये टाइपिंग में गड़बड़ कर दी। 1 and 2 ये रहा, ये रहा, मिल गया 1 and 2 मिल गया रे बाबा, 1 and 2 मिल गया रे बाबा। आंसर इज ए आगरा। टाइपिंग एरर हो गई, आंसर इज ए आगरा। चलो बेटा 30 क्वेश्चंस हो गए। अभी 20 क्वेश्चन और करने हैं, 20 क्वेश्चन और करने हैं, रेडी रहना। A Carnot heat pump works between 27 डिग्री सेल्सियस एंड 327 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स COP? ये तो बहुत इजी है, फटाफट से निकालो, फटाफट से निकालो। COP क्या होगी? COP इज इक्वल टू व्हाट? COP ऑफ Carnot heat pump is what? TH upon TH minus TL, right? TH upon TH minus TL. So COP of a Carnot heat pump will be equal to TH. TH is how much रे बाबा? 327 plus 273, 600 Kelvin divided by TH minus TL is how much रे बाबा? 300 Kelvin. So COP of a Carnot heat pump I'm getting as what? 2. Answer is D Delhi. Answer is D Delhi. I hope each and everyone is clear till here. I hope each and everyone is clear till here. चलो next question करते हैं, next question करते हैं। An inventor claims to have developed a refrigeration unit which maintains minus 10 degrees Celsius in the refrigerator, which is kept in a room where the surrounding temperature is 25 degrees Celsius. TL is given, TH is given, and which has the COP as 8.5. His claim is, फटाफट से आप निकालो COP of reversible refrigerator. What will be COP of reversible refrigerator? TL upon TH minus TL ना रे बाबा। तो what is the COP of reversible refrigerator? TL, TL कितना है? TL कितना है रे बाबा? TL is given minus 10 degree Celsius. That means 263 Kelvin, 263 Kelvin. TH minus TL 35, 25 minus 10. तो COP of reversible refrigerator कितना आएगा बेटा? 263 by 35 कितना आ रहा है? फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से बताओ। 263 by 35, 263 by 35, व्हाट इज द वैल्यू यू पीपल आर गेटिंग? एक बार मुझे हेल्प कर दो, एक बार मुझे हेल्प कर दो फटाफट से। कितनी वैल्यू आ रही है? 263 by 35 is how much? 7.51. विशाल इज सेइंग 7.51। बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक्चुअल रेफ्रिजरेटर का जो COP है वो 8.5 है, रिवर्सिबल का 7.51 है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो इम्पॉसिबल है रे बाबा, ये तो इम्पॉसिबल है रे बाबा। और अगर ये इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर इज सी चेन्नई, आंसर इज सी चेन्नई। यहां तक क्लियर है बेटा सब लोग? यस यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A reversible engine works between temperature limits of what? 260 degrees Celsius and 60 degrees Celsius. To improve the performance, we have to raise the source temperature to 30 degrees Celsius, lower the sink temperature to 30 degrees Celsius, insulate the engine, none of the above. बताओ बेटा कौन सा मेथड ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? विच मेथड विल बी मोर इफेक्टिव? आप एक काम करो, पहले तो अभी जो करंट में थर्मल एफिशिएंसी है वो निकाल लो। What is the thermal efficiency right now? 1 minus TL by TH. TL is how much? 60 degrees Celsius. 60 degrees Celsius means what? 273 plus 60, 333. Divided by TH. TH will be how much? TH will be how much? 273 plus 260. 273 plus 260. है ना? पी आ रहा है, यहां से थर्मल एफिशिएंसी निकाल लो, जो भी आएगी वो देख लेना। अब मान लो ए की बात करूं, ए में थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल हीट इंजन की कितनी हो जाएगी बेटा? 1 माइनस एल इज सेम, एच इज इंक्रीज्ड टू 300 डिग्री सेल्सियस मीन्स व्हाट? 573। यहां से वैल्यू निकाल लो। Let us check B. Lower the sink temperature to 30 degree Celsius. यहाँ पे कितना आ रहा है? RHE double dash 1 minus TL
303 डिवाइडेड बाय एक्चुअल TH 533। जल्दी से बताओ बेटा, तीनों वैल्यू देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड मोर इफेक्टिव है। कौन सा मेथड मोर इफेक्टिव आ रहा है? बी आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी आना चाहिए, है ना? आंसर विल बी बी बॉम्बे। किया आप लोगों ने? यही आएगा, एक बार देख लेना। वैल्यूज मुझे बता दो अगर किसी ने सॉल्व कर दिया है। इफ एनीवन इज एबल टू सॉल्व, फटाफट से वैल्यूज बता दो। इफ एनीवन इज एबल टू सॉल्व, फटाफट से वैल्यूज बता दो। क्या क्या आ रही हैं वैल्यूज? वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना? बाय नहीं लिखा है रे बाबा नवनीत, आप पढ़ते नहीं ढंग से। रेज द सोर्स टेम्परेचर 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है। 2 का मतलब क्या होगा? उतने तक, ठीक है। इसकी वैल्यू 0.375 आप लोग बोल रहे हो, इसकी वैल्यू 0.41 आपने बोला, इसकी वैल्यू 0.4315। तो 100% इंक्रीज तो दोनों में हो रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा हो रहा है। सो दिस इज मोर इफेक्टिव। आंसर इज बी बॉम्बे। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A researcher, Champu researcher, okay, 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 okay. A researcher claims that he has developed an engine which, while working between source and sink temperatures of 377 and 27 degrees Celsius, rejects only 50% of absorbed heat. What will his engine be? देखो बेटा, TH is given, TL is given, rejects only 50% of the absorbed heat. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? rejects only 50% of absorbed heat. What is the meaning of this? That means remaining 50% is getting converted into work, and if remaining 50% is getting converted into work, thermal efficiency of this heat is a 50% 0.5. फटाफट से निकाल लो, what will be the thermal efficiency of reversible heat engine? 1 minus TL, 300 Kelvin divided by TH, 377 plus 273, 650. What is the thermal efficiency of reversible heat engine you people are getting? 65 minus 30, 35 by 65, 7 by 13, तो 0.5 से कम ही आ रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये भी इम्पॉसिबल है रे बाबा। चंपू के सारे काम इम्पॉसिबल होते हैं रे बाबा। The thermal efficiency of reversible heat engine which will be operating between these two thermal energy reservoirs is coming less than 50%, and Champu's heat engine is having 50% thermal. ये कैसे possible है रे बाबा? Answer is an impossible. सही है क्या यार? ये एक बार कंफर्म करो, एक बार ये वाला आंसर कंफर्म कर दो फटाफट से। इम्पॉसिबल ही आ रहा है ना? 34 का इम्पॉसिबल ही आ रहा है ना यार? ये मुझे कंफर्म कर दो, 34 वाला इम्पॉसिबल ही आ रहा है ना? ये इम्पॉसिबल ही आ रहा है ना?
हाँ हाँ, बता दो बता दो बता दो। कितना आ रहा है? प्रैक्टिकल है? ओ हो। अरे 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 अरे, ये लेस देन 0.5 नहीं है रे बाबा। 13 है ना? हाँ हाँ, अगर 14 से ऊपर हो, और चंपो, अगर 14 से ऊपर होता तो लेस देन 50% आता, ये तो 14 से कम है देखो। अरे चंपो, चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, 7/14 विल बी 50% ना, तो 7/13 है, मोर देन 50% आना चाहिए मेरे ख्याल से। जल्दी से बताओ, इसलिए मुझे डाउट हो रहा था। कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है यार मेरे पास? कैलकुलेशन करके बताओ। 0.5384, यस। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओह माय गॉड, द इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस प्रोवाइड्स द क्राइटेरियन ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए साइकिल। बिल्कुल सही है। द इनइक्वालिटी ऑफ द क्लॉसियस प्रोवाइड्स द क्राइटेरियन ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द साइकिल। If cyclic integral del q by t greater than 0, the cycle is irreversible and possible। बिल्कुल गलत है रे बाबा, बिल्कुल गलत है रे बाबा। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, फॉल्स। सर इस चेन्नई, कैन आई से आंसर इस चेन्नई? बेटा 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, वी आर एबल टू सॉल्व 35 क्वेश्चन। चलें आगे, चलें आगे फटाफट से। चलो बेटा 35 कर लिए, 15 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो बेटा दीज आर द न्यू बैचेस विच वी स्टार्टेड रिसेंटली ऑन 21st July। एक्सेलरेट फॉर गेट एंड ईएससी 2022 बैच ए विद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आरोहण फॉर गेट एंड ईएससी बैच एफ विद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। And yes, those who are looking for English only batches, we are having English only batches also, Spark for GATE 2022, Burr for GATE 2023. I will be taking the classes in these batches. I also started the new courses on Unacademy Plus, new course on Unacademy Plus, applications of thermodynamics, and these are the chapters which I'm going to cover. Complete GATE mechanical XC का syllabus complete होने वाला है, ATD का, आइस इंजन साइकिल, गैस पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, स्टीम एंड गैस टरबाइन, एयर एंड गैस कंप्रेसर्स, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं। तो बेसिकली फ्रॉम द 21st July वी स्टार्टेड 3 न्यू कोर्सेज, ATD, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फटाफट से सॉल्व करो। An electric power plant produces 10 megawatt of power consuming 90 into 10 to power 6 kilojoule per hour of the fuel energy. The heat rejected by the power plant is, फटाफट से करो बेटा, फटाफट से करो। Q डॉट L पूछ रहा है, Q डॉट L पूछ रहा है, देखो। W dot is given 10 megawatt, Q dot H will be what? 90 into 10 to power 6 kilojoule per hour, है ना यार। इसको एक काम करो, 90 into 10 to power 6 किलोजूल पर सेकेंड, किलोवाट में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 3600, और फिर वहां से आप लोग मेगावाट में कन्वर्ट करना। इट विल बी कमिंग 15 मेगावाट ना। डॉट एल विल बी व्हाट? अरे 36 दूनी 72, 72 प्लस 18 90, 15 मेगावाट आ जाएगा। तो Q डॉट L इज इक्वल टू व्हाट? Q डॉट H माइनस W डॉट L विल बी 5 मेगावाट। आंसर इज ए, आगरा। दूनी 72 ना,
32 दूनी 72, 72 प्लस 18 90, 25 मेगावाट माइनस 10 मेगावाट, 15 मेगावाट इज द आंसर। चलो आगे चले, सी चेन्नई। नेक्स्ट नेक्स्ट, अ रिवर्सिबल इंजन हैज आइडियल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। A reversible engine has ideal thermal efficiency of 30% when it is used as a refrigerating machine with all conditions unchanged. The coefficient of performance will be। अरे फटाफट से आंसर बताएंगे रे पापा, ये तो चंपू, अब चंपू क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, चंपू क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। रिवर्सिबल इंजन हैज एन आइडियल थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 30%। So basically thermal efficiency of reversible heat engine is given 0.3. He is asking COP of reversible refrigerator. This will be equal to what? 1 by 0.3 minus 1, 0.333 है ना, 3.333 minus 1, तो क्या आ रहा है रे बाबा? Can I say 2.33? Answer is C, Chennai. Let us go to the next question. A refrigeration unit has COP of 4 and extract 10 kilojoule of heat from the cold reservoir. तो बेटा COP दी हुई है, COP दी हुई है 4 and this is QL. If this machine works as a heat pump, how much heat will be delivered to the environment? बहुत इजी है, बहुत इजी। बेसिकली QH निकालना है आपको। देखो अगर COP of refrigerator is a 4, COP of heat pump will be 5. This must be equal to what? QH by W, है ना? ये बात सही है? ये बात सही है? फटाफट से बताओ। ठीक है, QH निकालना है, 5 इज इक्वल टू QH, W को लिख दो H माइनस QL, है ना? तो 5 इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय H माइनस QL, है ना बेटा? यहां से कितना जाएगा? 5 QH माइनस 50 इज इक्वल टू QH, दैट मीन्स 4 QH इज इक्वल टू 50. So QH is equal to how much? 12.5 kilojoule, right? है ना? आंसर इज सी, चेन्नई। कंफर्म कर दो बेटा, सबका आंसर सी चेन्नई आ रहा है। आई होप ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग आंसर सी चेन्नई। यस यार, इसको एक और तरीके से कर सकते थे, ये थोड़ा लंबा हो गया। इसको चाहते तो आप लोग कुछ ऐसा भी कर सकते थे। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर पता है ना, 4 इज इक्वल टू व्हाट? QL। QL तो ऑलरेडी गिवन है बाय W। W इज इक्वल टू हाउ मच? 10 by 4. 10 by 4 means what? 0.5 kilojoule. QH will be how much? QL 10 plus W, 12.5 kilojoule. ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा, है ना? Let us go to the next question. Question number 39. A Carnot engine rejects 50% of heat absorbed from a source to a sink at 27 degree Celsius. What is the source temperature? ये तो बहुत ही easy question है, ये तो आपको पता होना चाहिए बेटा। COP दे दी, सॉरी थर्मल एफिशिएंसी दे दी Carnot इंजन की 50%, 0.5 is equal to what? 1 minus TL by TH. TH is equal to 600 Kelvin. If you convert into degree Celsius, 27 degree Celsius. That's it. Answer is C, Chennai. Let us go to next question. In a cyclic heat engine operating between a source temperature of 600 degree Celsius and a sink temperature of 20 degree Celsius, the least rate of heat rejection per kilowatt net work output of the इंजन इज। चंपू क्वेश्चन है रे बाबा,
डॉट एल बाई टी एल इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट डिवाइडेड बाई टी एच माइनस टी एल. Dot L is equal to what? TL. TL is how much? 20 degree Celsius, 293 Kelvin divided by TH minus TL, 600 minus 20, 580 into W dot. 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, 0.505 किलोवाट. यहां तक क्लियर है बेटा? आंसर इज सी चेन्नई. आ गया आंसर सी चेन्नई. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है. अब ये बताओ 40 में से कितने लोगों ने 40 के 40 सही दिए? है कोई ऐसा? अभी तक 40 क्वेश्चन किए हैं, कितने लोगों ने 40 के 40 सही आंसर दिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गिव ऑल 40 करेक्ट? एक्सेलेंट है रे बाबा, मजा आ गया होगा बेटा. 10 क्वेश्चन और हैं, 10 क्वेश्चन और हैं, इनको कल करेंगे. 10 क्वेश्चन ये हो गए और कल भी लगभग 35-40 क्वेश्चन है करने के लिए, तो कल भी लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना. कल करते हैं इन क्वेश्चन को, डोंट वरी, क्योंकि अभी मेरी प्लस की क्लास है तो लेट हो जाएगा.